कर्नाटक में बीजेपी हामियों की निगाहें अपने आला कमान पर टिकी हुई हैं और जहां से हरी झंडी मिलते ही रियासत में पार्टी हुकूमत साजी का अमल शुरू करेगी। हालांकि पार्टी लीडरान स्पीकर से लेकर बागियों पर नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि उनके मुस्तकबिल का फैसला स्पीकर रमेश कुमार को करना है और इस मामले पर स्पीकर रमेश कुमार का कहना है कि वो आईन को नजर में रखते हुए फैसला देंगे। इस मौके पर रमेश कुमार ने सुप्रीम कोर्ट की अहमियत भी बताई। उन्होंने कहा कि वो अदालत उज़्मा की बहुत कदर करते हैं, क्योंकि वो मुल्क की सबसे बड़ी अदालत है। उधर बीजेपी के सीनियर अरकान असेंबली ने दिल्ली में पार्टी सदर अमित शाह से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रियासत के ताजा हालात पर जिसके बाद आला कमान ने जरूरी हिदायत दी है। हुकूमत साजी के सवाल पर बीजेपी का कहना है कि पार्टी क़यादत की हरी झंडी के बाद हुकूमत साजी का अमल शुरू हो जाएगा। लीडरान को उम्मीद है कि पीर से पहले हलफ बर्दारी तकरीब हो जानी चाहिए। अक्सरियत को लेकर बेफिक्र बीजेपी ने इत्तेहाद पर जमकर तंज भी किए। We want to meet the Amit Shah ji. We met the Amit Shah ji and our working president JP Nadda also. We met the JP Nadda ji. क्या बातचीत हुई सर? बातचीत क्या हुई? बातचीत क्या हुई? What only regarding you elicited the senior political senior of the Karnataka and regarding the formation of the Bharatiya Janata Party government. What steps we have to taken regarding all these aspects we discussed. क्या उम्मीद है? Mostly more probably more 3 o'clock. क्या बात हुई? अब आगे क्या होगा? No, next steps they have to instruct us. Our high command has to instruct next course of action. कुछ इंस्ट्रक्शन ऐसा मिला कुछ नया? No, we discussed, we elicited everything, and they have to decide. They have to instruct us. Guidance of the central leadership. You are aware of the Karnataka development. The minority government is no more now. And to formation of the new government, what should be the strategy and action plan for the new government? We are meeting our central leaders and will seeking their guidance. So in that connection, we are all here. They are all senior MLAs. They are not newcomers to the legislature. So they have waited for 14 months to settle their issues. These people who were in power were not gracious enough to consider their requests, consider their demands, and the bondage between them is 100% spoiled. So there is no question of their coming back and going to the fold of their original parties. We have that confidence with us, and we are hopeful that we will form the government. Shah ji has to tell us to convene the meeting of legislature party. He has to deploy his representative, that is observer. Whenever he says, we will go ahead. He is a better judge than all of us. That will be there. See, we are at governor's door. We have to tap his door. We have to claim. All that we will tell to our president. Let him take decision, whatever he decision takes. बीजेपी के हुकूमत साजी की तैयारियों के बीच इत्तेहादी लीडरान भी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। कांग्रेस लीडरान की मीटिंग के कारगुजार सीएम कुमारस्वामी ने भी पार्टी एमएलए के साथ मीटिंग की और इस बीच इस मौके पर बागियों के सियासी मुस्तकबिल पर भी सवाल उठाए। तो कांग्रेस का कहना है कि हुकूमत गिराने के लिए बीजेपी ने पैसे के अलावा जांच एजेंसियों का भी खुलकर इस्तेमाल किया। केसी वेणुगोपाल ने तो यहां तक कहा कि आज भी बीजेपी के पास अक्सरियत नहीं है, लेकिन वो सही वक्त का इंतजार करेंगे। Our party organization issue we discussed. No other thing we discussed. Coalition is different. Party development work is different. To strengthen our party, all MLAs, they have advised us. Even they taken responsibility, our MLAs. They will going to work for the strength of our party. Sir, but there are some murmurs among Congress that that coalition is not beneficial for them. We don't want to discuss about those issues. I don't know. Actually, Congress leaders also, what you asking me, that issue they were not discussed with us. They are very free. We are also very free. If coalition is work out, if they want, we will going to join hand with them. Otherwise, we work ourselves and we strengthen our party on our own. Sir, still going ahead with the disqualification of the MLA, sir? Already we have given submission to Speaker to
तो कर्नाटक पर सियासी अपडेट देने के लिए इस वक्त मेरे साथ बेंगलुरु से जुड़ गए हमारे रिपोर्टर जयपाल शर्मा इस वक्त मेरे साथ हैं। जयपाल से हम बात करेंगे। जयपाल फोनलाइन पर हमारे साथ हैं। जी, जानना चाहेंगे ताज़ा सूरत हाल क्या है सियासी, अगर हम बात करें तो, और कब तक दावत मिल सकती है गवर्नर की जानिब से भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने के लिए? जी देखिए, फिलहाल अगर हम बात करें तो ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि कल ही येदियुरप्पा राज्यपाल के पास पहुंच जा सकते थे अपना दावा लेकर के सरकार बनाने का, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व से किसी प्रकार का कोई हरी झंडी नहीं मिलने के कारण वो नहीं गए। और इस बीच एक नई डेवलपमेंट के तहत भारतीय जनता पार्टी का एक डेलीगेशन जो है जगदीश शेट्टर के नेतृत्व में दिल्ली पहुंचा है। उनकी एक बार मुलाकात पार्टी हाईकमान से हुई है, अमित शाह से उनकी मुलाकात एक बार हुई है, जेपी नड्डा से मुलाकात हुई है, लेकिन किसी नतीजे पर अभी तक वो नहीं पहुंचे हैं। ऐसा बताया गया था कि लोकसभा के समय समाप्त होने के बाद इनकी मुलाकात हो सकती है, तो अगर उस पर बैठ करके वो चर्चा होगी। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की अभी सबसे बड़ी जो चिंता का विषय वो ये है कि बागी विधायकों के ऊपर में फिलहाल स्पीकर के द्वारा कोई भी फैसला नहीं लिया गया है। तो एक तरह से वेट एंड वॉच की जो नीति है वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अपनाई गई है। केंद्रीय नेतृत्व भी अभी फिलहाल किसी हड़बड़ी में नजर नहीं आता है, वो बहुत सोच समझ करके कोई फैसला लेना चाहता है। इसलिए हालांकि आज शाम में अगर वो मुलाकात हो पाती है तो शायद कुछ निर्णय निकल करके आ जाए। बाकी सारी चीजों के प्रति जो एक तरह से देखा जाए तो संतुष्टि है कि जो है सरकार बनाने का रास्ता खुला हुआ है, लेकिन फिलहाल जब तक बागियों पर कोई नतीजा नहीं आता या केंद्रीय नेतृत्व इसके ऊपर में पूरा विचार विमर्श करने के बाद ही निर्णय लेगा, तो जो उम्मीद जताई जा रही थी कि शपथ ग्रहण समारोह जो है वो शुक्रवार तक हो जाएगा, तो फिलहाल ऐसा होता नजर नहीं आता है। अभी हमें थोड़ा इंतजार करना होगा जब तक वहाँ से केंद्रीय नेतृत्व किसी प्रकार का निर्देश नहीं देता। बिल्कुल। और इधर SD कुमारस्वामी ने भी लगातार बैठकें शुरू की हैं और उनको भी अभी हम सुन रहे थे। उस खेमे में क्या हलचल है? जी देखिए, अगर हम गठबंधन की बात करें तो कांग्रेस ने फिलहाल अपनी तरफ से वो जो है पूरी स्थिति पर नजर रखे हुए है और लगातार जो है वो देख रही है कि ये पूरी प्रक्रिया किस तरह से हो रही है। और कुमारस्वामी ने आज दिल्ली जाकर के रामलिंगा रेड्डी से मुलाकात की। रामलिंगा रेड्डी उन बागी नेताओं में से थे जिन्होंने अपना इस्तीफा दिया था। हालांकि बाद में जब मुख्यमंत्री कुमारस्वामी सिद्धरमैया के साथ उनके घर पहुंचे और उनको जाकर के उनसे बात की और उनको इस बात के लिए राजी किया कि वो अपना इस्तीफा वापस लें, तो उन्होंने अपना इस्तीफा वापस ले लिया था। और आज मुख्यमंत्री उनके घर पे जो पहुंचे थे, जाकर के उनको धन्यवाद देने के लिए उन्होंने कहा कि इस परिस्थिति में भी उन्होंने हमारी बात को सुना और मामले की गंभीरता को जानते हुए अपना इस्तीफा वापस लिया। मैं इसके लिए उनको धन्यवाद देने आया था। कुमारस्वामी नजर रखे हुए हैं और इस तरह से वो भी इस बात को देख रहे हैं कि आखिर भारतीय जनता पार्टी किस तरह से आगे बढ़ती है। ये इसमें कहीं कोई जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास फिलहाल आंकड़े के नाम पर 105 है, जबकि मैजिक फिगर जो है 113 का है। और जब तक बागियों के इस्तीफे स्वीकार नहीं होते, सरकार बनाने का मतलब है कि सरकार को फिर एक बार ऐसी स्थिति में ले जाना जहाँ पर कि नंबरों का खेल फिर हावी होगा। ऐसे में ये जरूरी हो जाता है कि वो इसे स्वीकार हों और इसके लिए उनकी दो उम्मीदें हैं, एक स्पीकर की तरफ से, दूसरी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया जयपाल शर्मा आपका इस पूरी बातचीत के लिए। मुल्क में जारी नफरत आमेज बयानात का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बोलने की आजादी के नाम पर सियासतदान सियासी मफाद के लिए आए दिन अपनी हदें पार करते नजर आ रहे हैं। हालांकि मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने दावा किया है कि अवाम ऐसे लोगों के मंसूबे को कामयाब नहीं होने देगी। AIMIM के MLA अकबरुद्दीन ओवैसी के बयान पर बीजेपी MLA राजा सिंह ने पलटवार किया। सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी करके राजा ने कहा कि वो 15 मिनट नहीं बल्कि ओवैसी बरादरान को 15 साल का वक्त देने को तैयार है। इस दौरान राजा सिंह ने भी दूसरे समाज के लिए बार बार नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया, जबकि रियासती बीजेपी ने वजीर दाखिला से अकबरुद्दीन की स्पीच की शिकायत करने की बात कही है। वाज़ेह है कि कल रियासत के करीमनगर में अकबरुद्दीन मॉब लिंचिंग को लेकर काफी तल्ख तेवर दिखा रहे थे। आइए आपको सुनवाते हैं अकबरुद्दीन ओवैसी ने कल करीमनगर में क्या कुछ कहा था। कोई भी RSS वाले, कोई भी हमारा बाल भी विंगा नहीं करता। याद रखो, दुनिया उसी को डराती है जो डरता है। दुनिया उसी से डरती है जो डराना जानता है। क्या है अकबरुद्दीन ओवैसी से नफरत क्यों है? 100 सुनार की तो 1 लोहार की।
15 मिनट ऐसा ज़र्ब है जो अभी भी नहीं भर सका। साबिक अनजहानी वजीर आजम राजीव गांधी कत्ल की मुजरिम नलिनी श्रीहरन 1 महीने की पैरोल पर रिहा हुई हैं। अपनी बेटी की शादी के लिए अदालत ने ये पैरोल उनकी मंजूर की थी। इसके पहले नलिनी ने खातून कमीशन और अदालत से अपनी रिहाई की अपील की थी। 25 साल से भी ज्यादा दिनों से जेल में सजा काट रही नलिनी के घर पहुंचते ही भारी भीड़ लग गई। पुलिस हिफाजत में जेल से अपने घर पहुंची नलिनी के चेहरे में खुशी और गम के मिले जुले असरात नजर आ रहे थे। नलिनी ने इंग्लैंड में रह रही अपनी बेटी की शादी को लेकर कई बार हुकूमत से रहम की अपील कर चुकी थी। राजीव गांधी कत्ल मामले में नलिनी को 14 जून 1991 को गिरफ्तार किया गया था। 1998 में खुसूसी अदालत ने उसे और 25 दीगर लोगों को कसूरवार करार दिया था। इस मामले में नलिनी का शौहर मुरुगन भी जेल में बंद है।